numbers. Good evening, sir. Good evening, Ayushi. आशीष ज्वाइन कर रहा है फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. So in complex numbers, we are going to study first polar form. What is polar form? Uh, I think I should wait for 2 more minutes before starting it. Maybe some other will join. Ayush, do you have any doubts from previous class if you have practiced the assignment? No doubts? No, sir. Okay. So if we take a complex number, let us suppose z is equal to x plus iota y is a complex number which we have taken. So x is called its real part of the complex number and y is called the imaginary part of the complex number. What does it denote? So actually it denote a location of a point in Argand plane. So if we take two lines which are perpendicular to each other, one line is called x-axis, another line is called y-axis, and this x-axis is actually called real axis, and this y-axis is called imaginary axis. So a complex number which has two parts x and y, they are plotted in this plane. This plane is called Argand plane. Sometimes we also call it complex plane. Sometimes we also call it Gaussian plane. ठीक है, तो कुछ नाम से भी हम लोग इसको यूज बुला सकते हैं. मैं आर्गेंट प्लेन नाम दे रहा हूँ. वैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं या गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हैं. सो एक्स एक्सिस इज द रियल एक्सिस and y-axis is the imaginary axis. 0 is a point which is the origin and intersection of real axis and the imaginary axis. So this is a point which lies simultaneously on real axis as well as imaginary axis. That is why 0 is called a real number as well as a purely imaginary number. This is negative x-axis and this is negative y-axis. So if suppose there is a number z is equal to 2 plus 3 iota, so its imaginary part is 2. So on the real axis we will identify 2 and its imaginary part is 3. So imaginary part is identified on the imaginary axis. Now if we take the intersection of these two, so this is 2 comma 3, this is the coordinate, and this actually represents the complex number z is equal to 2 plus 3 iota. तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक लोकेशन का नाम है. इट इज अ लोकेशन इन द आर्गेंट प्लेन. तो 2,3 एक लोकेशन है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ लोकेशन समवेयर. वैसे ही अगर तुम मान लो कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू -1 एंड -2 आयोटा, तो इट्स रियल पार्ट इज -1, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 मिलेगा एंड इमेजिनरी पार्ट इज -2, so negative y axis पे -2 मिलेगा. So when you will plot the point
this point z, this let us call it z1. So this is -1 comma -2, which is actually z1 point, which can be written as -1 -2 iota. So this is basically location of a point in Argand plane, and complex numbers basically tell us about location of a point. Now this is called XY form. There is another form which is called polar form. So if we talk about polar form of a point, what does it mean actually? जैसे z को x प्लस आयोटा y हम लिख सकते हैं, वैसे ही पोलर फॉर्म में जब z को लिखते हैं तो x को हम रिप्लेस कर देते हैं. वी रिप्लेस x बाई, let me write it here, if it is x plus iota y, then what we suppose, we are taking this complex number z and we join origin to this complex number z with a straight line. This straight line will have some length which is called r, or it is also called modulus of z. We denote it like this, modulus of z. And this makes some angle with the positive x-axis. This is called theta angle. So if you observe कि किसी पॉइंट को अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू डिनोट करके बता रहे हैं, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको जो है मॉडुलस और ये जो एंगल थीटा है, जिसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. तो इन दोनों के हेल्प से भी उस पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं. कैसे? मान लो हमें थीटा दिया हुआ है, सपोज किसी भी पॉइंट का 60 डिग्री, ओके, विच इज एक्चुअली π/3, और मॉडुलस दिया हुआ है 2. तो हम इस पॉइंट को इस आर्गेंट प्लेन पर अगर ड्रॉ करना चाहें तो व्हाट वी विल डू, विल टेक अ रेडियस ऑफ 2 यूनिट which is making 60 degree angle with the positive x-axis and its length is 2. So we come to this point P. अगर हमें एंगल पता हो और उसकी लेंथ पता हो तो हम उस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं. तो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए बस एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही एक तरीका नहीं है, थीटा और आर विच इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, उससे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो एक्चुअली जब हम इसको समझते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई के रूप में लिख रहे हैं या आर कॉमा थीटा के रूप में लिख रहे हैं, दिस इज आर, दिस इज थीटा, सो दिस कैन बी इंटरचेंजेबली रिटन, बिकॉज ये जो लेंथ है ये होती है एक्स, राइट, और ये जो लेंथ है ये होती है वाई. तो एक्स को अगर तुम्हें थोड़ा सा याद है ट्रिग्नोमेट्री, आई होप इस तरह का तो तुमने फिजिक्स में भी देखा होगा, कंपोनेंट जिसको कहते हैं वेक्टर में, तो तुम कह सकते हो कि x इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल x एज x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. ठीक है, तो हम जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई में उसको अगर पोलर फॉर्म में दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, और cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, और चाहे तो r को कॉमन लेके अंदर में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखें. So this is called the polar form. ठीक है, this is the xy form of the complex number. This is called the polar form. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या xy के हेल्प से भी लिख सकते हैं. दोनों तरीका है जिससे हम किसी भी पॉइंट को xy कोऑर्डिनेट में प्लॉट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Okay. So first clearly write all of this. Don't miss anything. और उसके बाद फिर हम लोग इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. Okay, Ayushi is having a question. Sin 60 degree plus iota cos 60 degree. Express the following number in polar form. तो ये तो ऑलरेडी तुमने पोलर फॉर्म में दे ही रखा है. अच्छा, साइन पहले है. ओके ओके, अभी डिस्कस करते हैं. देयर इज अ गुड क्वेश्चन बाय आयुषी, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं.
लिख लेना तो बता देना। सर डन। डन, ओके। So before explaining the question which is being asked by Ayushi, I would like to tell some conversions. Like if you have any point x comma y, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ आसानी के लिए। आर्ग्यूमेंट इज थीटा एंड मॉडुलस इज आर। तो अभी हमने देखा है कि z जो है x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और इसका जो पोलर फॉर्म है वो होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर z x को हम रिप्लेस कर सकते हैं आर कॉस थीटा से, y को रिप्लेस कर सकते हैं आर साइन थीटा से। अब तुमसे उल्टा कहा जाए कि r को रिप्लेस करो, तो यू कैन सी दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, and if you say this is x and this is y, then r can be written by Pythagoras theorem as a square root of x square plus y square, and tan theta can be written as perpendicular by base, which means y by x, or we can say that theta is equal to tan inverse of y by x. तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक पूरा लेक्चर रखेंगे, लेकिन अभी जितना इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए मैं उतना लिख के बता दे रहा हूँ। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है और ये जो मॉडुलस है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ z, which is also called mod of z like this, and this theta is the argument of z, which is also written as arg z. तो इसका इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब अगर हमें r और थीटा निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी रफली तुम ऐसा समझ सकते हो। नाउ अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय आयुषी दैट cos 60 डिग्री, सॉरी नॉट cos 60 डिग्री बट sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री प्लस आयोटा cos 60 डिग्री, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लिखना है, इन दिस फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म, राइट। तो इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखें? पोलर फॉर्म में एक तो आर होता है, एक थीटा होता है। तो अगर हम आर की बात करें यहाँ पे, तो आर तो हो जाएगा, दिस इज अवर फॉर्मूला, आर इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री, वाई स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज 1। तो आर तो इसका 1 है। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा को, वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, y by x लेते हैं। तो दिस इज y, cos 60 डिग्री इज y, and what is x, sin 60 degree is x, so this will become cot of 60 डिग्री, राइट। ये हो गया cot of 60 डिग्री। उसको tan थीटा के बराबर अगर करना चाह रहे हैं हम लोग, तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं tan ऑफ इसको लिखो तुम tan ऑफ cot 60 है ना, 90 प्लस 60 नहीं कर सकते, उससे माइनस आ जाएगा। 90, हाँ राइट, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है बाई अलाइड एंगल दैट tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। तो अगर हम ये वाला अलाइड एंगल रूल लगाते हैं
तो कॉट ऑफ 60 डिग्री को अगर हम टैन में चेंज कर रहे हैं तो हमें थीटा की जगह क्या लेना होगा, 90 माइनस थीटा. सो कॉट विल बिकम टैन, और tan 90 माइनस 60 विल बिकम tan ऑफ 30 डिग्री, राइट. तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, tan 30 डिग्री के बराबर. इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर. 30 सो degree. आर, हेलो, Yes, sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो थीटा हो गया 30 डिग्री. तो अब हम इसको पोलर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम पोलर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू तो 1 है, बाकी साइन 60 की जगह हम लिखेंगे कॉस 30, और कॉस 60 की जगह लिखेंगे साइन 30. तो ये हमारा इसका पोलर फॉर्म हो गया. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. गुड. तो जो x होता है वो cos के टर्म में होता है, और जो y होता है वो sin के टर्म में होता है. और इस क्वेश्चन में एक्चुअली उल्टा करके दिया हुआ था, x में sin दिया हुआ था, y में cos दिया हुआ था. तो पहला तो नजर में ऐसा धोखा आ सकता है कि अरे ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म है, लेकिन ये पोलर फॉर्म है नहीं, क्योंकि x की जगह sin है, वेराज x की जगह क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए, और y की जगह cos है, वेराज y की जगह क्या होनी चाहिए, sin होना चाहिए. I hope this is clear to every one of you. Yes, sir. Yes, Good. sir. So based on the concept of polar form, we will do few questions right now. Then we'll proceed after that to conjugate of the complex number and the modulus of the complex number. हो जाएगा तो बता देना, मैं इसको इरेज करके फिर क्वेश्चन दूंगा. Sir, done. Okay. Represent the following complex numbers in polar form. First question is 1 plus iota root 3 square divided by 4 iota
1 माइनस आयोटा रूट थ्री। तो पहले तो इसको तुम्हें एक्स वाई के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके, उसके बाद तुम्हें इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा है 1 प्लस कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री। So just try these two questions, and in which you have to represent them in polar form. That means r cos theta plus iota r sin theta. Try these questions, then we will discuss them. सर इसमें फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में क्या है मेरे को बता दीजिए। फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर में यस। 4 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा रूट थ्री। ओके सर।
Should I discuss first part? Yes, sir. Okay. तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। इसको 1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करते हैं अगर, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 1 इंटू आयोटा रूट 3। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का हमें आइडेंटिटी पता है बहुत पहले से, हम वो आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे में 4 है, आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस आयोटा से, तो आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, और ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा विच इज -1, तो ये माइनस माइनस प्लस रूट 3 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर में क्या हो रहा है, 1 -3, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 2 आयोटा रूट 3, ये ऊपर में हो रहा है। नीचे में क्या आ गया, 4। जनरली हम लोग रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, तो रूट 3 पहले लिखते हैं और प्लस आयोटा बाद में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ था वैसे भी लिख सकते थे, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम -2 प्लस 2 आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 रूट 3 प्लस आयोटा। अब ऊपर से 2 कॉमन लेके हम नीचे के 4 को कैंसिल करके 2 बना सकते हैं, तो 2 रूट 3 प्लस आयोटा हो जाएगा नीचे, और ऊपर का 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया तो -1 प्लस आयोटा रूट 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. ओके, अब मैं क्या No, करूंगा sir. कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में उसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो होता है रूट 3 माइनस आयोटा, तो उससे मैं ऊपर में और नीचे में दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर मेंटली भी अब कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जैसे -1 को रूट 3 से करेंगे तो -√3 मिलेगा, और आयोटा रूट 3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो +√3 मिलेगा। इफ यू सी हियर, तो रियल पार्ट एक -√3 मिल रहा है और एक +√3 मिल रहा है। इमेजिनरी पार्ट में प्लस आयोटा हो जाएगा और +3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा, नीचे में 2 और ये √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, दैट इज 3 + 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो दिस वुड बिकम -√3 कैंसिल विद +√3, 4 आयोटा होगा वो 2 से कैंसिल होगा, तो नीचे में आ जाएगा 8, तो 4 आयोटा बाई 8 को जब हम लिखेंगे तो 4 2 टाइम्स इज 8, तो आयोटा बाई 2 आएगा। तो ये फाइनली ये आ रहा है, अभी ये कॉम्प्लेक्स, अभी ये पोलर फॉर्म में नहीं है, अभी इस किस फॉर्म में, अभी ये x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, जहां पर कि x 0 है और y हाफ है और उसके साथ मल्टीप्लाइड है आयोटा, तो x इज 0, y इज हाफ। अब अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें तो उसका जो कन्वर्जन है वो लगा सकते हैं, लेकिन उसको बिना लगाए भी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो है 0 + हाफ आयोटा, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है और जिसका इमेजिनरी पार्ट हाफ है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे ऑन द आर्गेंट प्लेन, तो ये वाई एक्सिस पे एक पॉइंट आएगा 0, हाफ, ठीक है, वाई एक्सिस पे होगा क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा और हाफ के डिस्टेंस पे होगा, दिस डिस्टेंस विल बी हाफ। ये सबको समझ में आ रहा है? यस? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब जो है इसको हम पोलर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये जो एंगल बना रहा है दिस इज एक्चुअली 90 डिग्री, और ओरिजिन से जो इसकी दूरी है वो हाफ है, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाफ इज इट्स मॉडुलस, एंड यू कैन राइट इट एज cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। अगर cos 90 डिग्री की वैल्यू देखो तो वो 0 होती ही है, तो ये रियल पार्ट 0 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली ये आयोटा बाई 2 ही देगा। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया इसका, दिस विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. गुड। इसको जनरली हम लोग रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ कॉस π/2, 90 डिग्री मतलब π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, वैसे वो भी सही है,
और रेडियन के फॉर्म में लिख दो तो ज़्यादा जनरली रेडियन के फॉर्म में दिया रहता है, तो रेडियन के फॉर्म में भी सही है। तो हमारा पहला काम तो इसमें यह था कि इसको एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस करें। जब एक बार एक्सप्रेस हो गया तो फिर इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें। नाउ प्लीज डू सेकेंड पार्ट, फिर उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। ट्राई कर लेना पहले, तो बता देना, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तभी इसको अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, दिस इज एक्चुअली एक्स, एंड साइन पाई बाई 3, दिस इज एक्चुअली वाई। तो x प्लस आई वाई में x 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 है और y जो है साइन पाई बाई 3 है। तो जब तुम मॉडुलस निकालोगे r,
दैट विल बी रूट ओवर एक्स का स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर मतलब साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर, राइट। ऐसे लोग अब जब इसको सॉल्व करोगे, ये भी मैं मॉडुलस बस निकाल रहा हूँ, आर्गुमेंट भी निकालने की जरूरत पड़ेगी अभी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से a स्क्वायर विच विल बी 1 प्लस b स्क्वायर विच विल बी कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2ab विच विल बी 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। तो इसमें ये जो कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3, इसकी वैल्यू होगी 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 और एक और 1 है, तो दैट विल बिकम 2। तो 2 प्लस 2 कॉस पाई बाई 3। अब ये 2 को तुम कॉमन ले सकते हो और इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस पाई बाई 3। इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 plus cos pi by 3, if you remember, there was an identity cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि cos 2 theta plus 1 is equal to 2 cos square theta। यहाँ पर जो 2 theta है वो pi by 3 है, तो cos of pi by 3 plus 1 can be written as 2 times cos square pi by 3 का आधा क्या होगा? pi by 6 होगा। Are you getting this? Yes. सर एक बार स्टार्टिंग वाला बता दीजिए। स्टार्टिंग वाला क्या? जो मॉडुलस लिया हमने, ये वाला आर जो लिया है, आर होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो ये एक्स है और ये वाई है। ओके सर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो हमने लगाया वो क्लियर है। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। तो 2 और 2 2 है, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, और कॉस पाई बाई 6 का जो अंडर रूट होगा वो भी बाहर आ जाएगा, तो कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 डिग्री, दैट इज रूट 3 बाई 2। तो ये फाइनली बन जाएगा रूट 3। तो जो मॉडुलस है वो है रूट 3। अब इसका आर्गुमेंट भी निकालना है, तो उसको भी अभी निकालने के लिए ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि अभी हमने इसका मॉडुलस निकाला। ये सबको समझ में आया यहाँ यस तक? सर। गुड दिवांश। Yes. ओके गुड।
आई थिंक समवन हैज गिवन रिप्लाई, किसी का आर्गुमेंट आया है। ओके आशीष, यस सर इट इज क्लियर। ओके, तो आर्गुमेंट भी अब देख लेते हैं कि कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। ये वाला तो तुमने नोट कर लिया होगा मॉडुलस निकालने का, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √3, ये तो हमने निकाल लिया विच इज r। अब आर्ग्यूमेंट अगर निकालते हैं तो tan थीटा जो होता है y बाई एक्स का रेशियो होता है, तो साइन पाई बाई 3 बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, ये y बाई एक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो फॉर्मूला अभी मैंने लगाया था ना 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे और इस बार डिनोमिनेटर में वो फॉर्मूला लगेगा। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 इज 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, अगर पाई बाई 3 2 थीटा है तो पाई बाई 6 थीटा होगा। और साइन पाई बाई 3 को हम क्या ले सकते हैं, एक आइडेंटिटी और हमें पता है जो कि हमने पढ़ी है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो उसको अगर हम लगाएंगे तो 2 साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये सारा जो कुछ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसका आगे भी यूज होता है, इसलिए हमें सारा अपडेट रहना है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस पाई बाई 6 एक कॉस पाई बाई 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन पाई बाई 6 अपॉन कॉस पाई बाई 6 विच विल बी एक्चुअली इक्वल टू टैन पाई बाई 6। तो जो हमारे पास टैन थीटा है वो टैन पाई बाई 6 हो रहा है, इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है, पाई बाई 6 हो रहा है। ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज r विच इज √3 cos theta which is actually cos pi by 6 plus iota sin theta which is iota sin pi by 6. So this will be our answer. This is the polar form in which we can express it. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. सर लास्ट स्टेप में आपने tan पाई 6 लिखा। ये हमने tan थीटा लिया था ना, tan थीटा y बाई एक्स लेते हैं, ये y बाई एक्स था, इसको सॉल्व किया तो tan पाई बाई 6 आ गया। ओके सर। तो tan थीटा अगर tan पाई बाई 6 है तो इसका मतलब थीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। ओके सर। So trigonometric formula are very useful in almost all the chapters of maths. You will see in class 11th as well as in class 12. You will see some or other, somewhere or the other, there will be application of uh, trigonometric formula.
So now let us come to conjugate of z. What is conjugate of z? तो यह हमने कई जगह यूज किया भी अभी तक, जैसे मॉडुलस ऑफ z होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, वैसे कॉन्जुगेट ऑफ z होता है, और तीनों चीज हम लोगों को थोड़ा डिटेल में भी पढ़नी है। यूज तो हमने कर लिया जहाँ पे हमें करना था, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो कॉन्जुगेट ऑफ z ये होता है कि अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है, जो कि ऊपर में बार से दिखाया जाता है, वो होता है x माइनस आयोटा y। मतलब जो रियल पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है? ज्योमेट्रिकली ये बताता है कि मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x कॉमा y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इस पॉइंट z का जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी x कॉमा माइनस y। तो वो इस तरह से कुछ यहाँ पर z कॉन्जुगेट को प्लॉट किया जाएगा, x कॉमा माइनस y। तो एज यू कैन सी कि जो प्लस y है वो, और जो माइनस y वाला पार्ट है, x तो सेम रहेगा, वो एक्चुअली एक दूसरे का मिरर इमेज है अबाउट द x एक्सिस। सो यू कैन से दैट z एंड z कॉन्जुगेट आर मिरर इमेज, ज्योमेट्रिकली जो हम कह रहे हैं, ऑफ ईच अदर अबाउट x एक्सिस। व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज? तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो ज़्यादा यूज होती हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि z कॉन्जुगेट का अगर हम फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं 2 बार, तो वापस से हमें z मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस आई वाई एक बार बनेगा x माइनस आई वाई, और फिर वापस से बन जाएगा x प्लस आई वाई। तो 2 बार कॉन्जुगेट लेने पे वापस से वही नंबर मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर 2 नंबर को ऐड किया जा रहा है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, दैट इज सेम एज कि अगर हम उसका कॉन्जुगेट पहले ले लें और बाद में ऐड करें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कॉन्जुगेट लेने के बाद सब्ट्रैक्ट करें। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद कॉन्जुगेट ले रहे हैं, दैट इज सेम एज कि पहले कॉन्जुगेट लें और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें। उसी तरीके से अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद कॉन्जुगेट ले रहे हैं, दैट इज सेम एज कि पहले कॉन्जुगेट लें दोनों का और फिर उसके बाद डिवाइड करें। ओके सर। इसके बाद फिर प्रॉपर्टी और भी अभी हमें करनी है, पहले इतना नोट कर लो। So what are the other properties? प्रॉपर्टी नंबर 6 पे अगर आ जाएं तो इट सेज कि अगर z इज अ रियल नंबर विच implies that कि z will be equal to z conjugate, z और z conjugate सेम हो जाएगा अगर z रियल नंबर है। why is it so? क्योंकि अगर कोई रियल नंबर है, अगर z कोई रियल नंबर है तो वो x एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो x एक्सिस का जो के अबाउट उसका मिरर इमेज होगा वो भी वहीं पर होगा। अगर पॉइंट एक्सिस पे नहीं है तब उसका मिरर इमेज नीचे बन रहा है ना, लेकिन अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है तो मिरर इमेज वहीं का वहीं बनेगा। दूसरा ये समझ सकते हो कि z रियल नंबर अगर है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो x प्लस आयोटा 0 लो
या x माइनस आयोटा जीरो लो, दोनों बराबर होंगे क्योंकि आयोटा जीरो विल बी जीरो, तो ये फाइनली दोनों x ही होंगे। उसी तरीके से सातवीं प्रॉपर्टी है कि z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर z प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि z इज आयोटा y, उसका रियल पार्ट जीरो है, और जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो माइनस आयोटा y हो जाएगा, उसका रियल पार्ट भी जीरो है। तो यू कैन सी कि इसके आगे अगर हम एक माइनस लगा दें तो ये जो z है और ये जो z कॉन्जुगेट है वो आगे माइनस लगाने से बराबर हो जा रहे हैं। माइनस आयोटा y के आगे एक माइनस लगा दें, दैट विल बी आयोटा y। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अगर है तो z इज अ रियल नंबर, और z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट है सो z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये एक तरह का टेस्ट है ये चेक करने के लिए कि z रियल है या प्योरली इमेजिनरी है। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो उसका जो है ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। ऐसे भी कई बार यूज होता है। I hope everyone has written it now. So let us come to few questions on conjugate. एक बार मॉडुलस भी देख लेते हैं, फिर कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों पे क्वेश्चन कर लेंगे।
Should I erase this or you are still writing it? Just a Sir, minute. done. Okay, good. So what is modulus? अभी तक हमने मॉडुलस तो पढ़ ही लिया था और इस टॉपिक को अलग से अभी डील करेंगे। अभी तो जहाँ पे यूज करना था वहाँ पे हमने मॉडुलस ऑफ जेड यूज कर लिया था और हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है। ऑरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको आर से भी दिखाते हैं। एंड दिस मॉडुलस ऑफ जेड इज एक्चुअली रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी हमने देख लिया था पाइथागोरस थ्योरम से। ज्योमेट्रिकली हम ये दिखा सकते हैं कि इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो mod of z is root over x square plus y square. Now there are some properties of modulus of x. First property is कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जीरो लेते हैं, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर जीरो है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो नंबर भी जीरो है, और अगर वो नंबर जीरो है तो उसका मॉड भी जीरो है, तो दोनों वाइज इट इज ट्रू। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका मॉड लेते हैं, दैट इज सेम एज उसका मॉड लेके और उसके बाद मल्टीप्लाई करें। तीसरा इज अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और फिर मॉड ले रहे हैं, दैट इज सेम एज अलग अलग मॉड लेके और उसके बाद डिवाइड करें। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि अगर हम z1 प्लस z2 का मॉड ले रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, अगर हम मॉड अलग अलग कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, स्मॉलर होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, राइट? So these are two complex numbers z1 and z2, and you can consider the complex numbers as vectors because they have location and they have x and y component. तो ये दो complex number है। तो जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि by parallelogram law of vector addition, if you remember this will become a parallelogram, and the diagonal of this parallelogram from here to here will be actually, this point will be z1 plus z2। ठीक है, याद है ना कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उससे जो पैरेललोग्राम बनता है उसका जो डायगोनल होता है दैट इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। Yes, तो अगर sir. हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो z1 का ओरिजिन से दूरी है इसको हम कहेंगे मॉड ऑफ z1, और जो z2 का ओरिजिन से दूरी है उसको हम कहेंगे मॉड ऑफ z2, और z1 प्लस z2 का जो ओरिजिन से दूरी है उसको हम कहेंगे मॉड ऑफ z1 प्लस z2। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी से क्या होगा कि अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ध्यान से, दिस इज O एंड दिस इज A, दिस इज B। मैं इसको अलग से भी बना दे रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी छोटी जगह में बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अगर ये ट्राइंगल ऐसे लेते हैं तो ये O है, ये A है, ये B है, ये मॉड ऑफ Z1 है, ये जो है मॉड ऑफ Z2 है, ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का हमेशा दो साइड जो होता है उसका सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, और बेस्ट कंडीशन में क्या होगा कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं O, A और B, तो इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ O, A and B are कोलिनियर। अगर तीनों कोलिनियर हैं इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, तो हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अदरवाइज z1 प्लस z2 का मॉड विल बी लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. गुड आयुषी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी लॉ होता है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट में जिस तरीके की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, सब अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन मॉडुलस में मल्टीप्लिकेशन में जो सेकेंड प्रॉपर्टी है और डिवीजन में, इसमें तो हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एडिशन में अलग अलग
करके इक्वालिटी नहीं मिलेगी, इनइक्वालिटी मिलेगी। उसी तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि अगर हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, और फिर मॉड ले रहे हैं, तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हम अलग अलग लेके फिर सब्ट्रैक्ट करें और एक फाइनल पूरा का मॉड ले लें। तो z1 माइनस z2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 और पूरे का मॉड। तो ये दो जो इनइक्वालिटी लॉज हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने हैं और इसको याद रखना है। अभी एक दो ओके सर। प्रॉपर्टी और है जो बतानी है। हाँ, क्या बोल रही थी? यस, कुछ बोल रही थी। No, no, sir. Another property is, which is a very important property, z into z conjugate is equal to mod of z का square. Can you prove this? Try to prove this property. z को x plus iy लेके LHS क्या आता है और RHS क्या आता है, दोनों सेम आ जाएगा। दो तीन स्टेप में प्रूव हो जाएगा। Just try to prove this property. If you have done the proof, then tell me कैसे किया है।
z को x प्लस आई वाई अगर लोगे तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, विच विल बी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस विल बी प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड की अगर बात करो तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, विच विल बी ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Devansh and Ayushi are there. The rest have why they have exit so early. So anyways, तो तुम्हें मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस, देवांश एंड आयुषी? Yes, sir. यस सर। Good. So let us discuss a question based on this. एक तो मैं प्रॉपर्टी से ही तुम्हें एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन देता हूँ, उसको पहले ट्राई कर लो। So prove that mod of z is equal to माइनस z का mod is equal to z के कॉन्जुगेट का mod is equal to माइनस z के कॉन्जुगेट का mod। और इसको प्रूव करने के लिए अगर ज्योमेट्रिकली करते हो तो ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे और जल्दी भी हो जाएगा। देखो ज्योमेट्रिकली क्या होगा कि अगर तुम z को कहीं पर भी ले लो, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं z को, तो बाकी जो कुछ भी दिया हुआ है जैसे माइनस z दिया हुआ है, तो माइनस z क्या होगा कि ओरिजिन के अबाउट इसका मिरर इमेज हो जाएगा, दैट विल बी एक्चुअली माइनस z। z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z का कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज अबाउट द
एक्स एक्सिस। अभी हमने पढ़ा भी था कि z कॉन्जुगेट जो होता है z का मिरर इमेज होता है अबाउट द एक्स एक्सिस, और माइनस z कॉन्जुगेट माइनस z का मिरर इमेज अबाउट द एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, यस जब सर। हमने इनको प्लॉट कर लिया तो हमें एक ऐसा फिगर मिल रहा है विच इज अ रेक्टेंगल। दिस इज अ rectangle, and we can see that from origin distance of any of these vertices is same. So ये सब क्या है? Distance of vertices of a rectangle from its center कह सकते हैं, या कह सकते हैं from its center, जो कि point of intersection of diagonals है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली तुम इसको प्रूव कर सकते हो। Now I'm giving you a question here. The question says, if Z1 and Z2 are two complex numbers such that modulus of Z1 minus 2 times of Z2 upon 2 minus Z1 into Z2 का conjugate is equal to 1, and mod of Z2 is not equal to 1, what is the value of mod of Z1?
अच्छा, अब तो बस आयुषी रह गई है। तो आयुषी ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी सारे तो चले ही गए। ओके सर। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, या कुछ ट्राई कर रही हो तो नहीं समझ में आया हो, या कोई हिंट दे दूं मैं? एक हिंट मैं ये दे देता हूँ कि स्टार्ट तुम कैसे करना, ये जो दिया हुआ है ना, z1 माइनस 2z2 अपॉन 2 माइनस z1 z2 का कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर कर देना। तो इसका स्क्वायर करोगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इसके स्क्वायर को हम लिख यस। सकते हैं बाय द सिक्स्थ प्रॉपर्टी विच वी हैव जस्ट स्टडीड, दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस 2z2 by 2 minus z1 z2 conjugate into the conjugate of this z1 minus 2z2 by 2 minus z1 z2 conjugate, और इस पूरे का conjugate, this is 1। क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी यूज की थी ना कि if mod of z square is given we can write it as z into z conjugate, तो उस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम Yes. आगे प्रोसीड करेंगे। तो दिस इज अ हिंट, ये हिंट है तुम्हारे लिए, फिर इसके बाद तुम आगे के स्टेप्स को प्रोसीड कर सकती हो। आर यू Okay, गेटिंग sir. दिस? Yes, sir. Okay, Ayushi, then let us conclude today's session, right? Yes.